So namaskaram all. Let's continue our discussion on exemptions. In last lecture, we had started our discussion on agriculture related services, sorry, government related services. And in government related services, I told you entry number 6 is the most important entry. And in entry number 6 also, the last point, point D, has created a lot of confusion. In point number D, let me teach you from my handwritten notes so you will understand it very clearly. So entry number 6 talks about services by. So these are the services provided by the government. Okay. Services provided by central government, state government, union territory, or local authority. But excluding, whenever we say something which is excluded from exemption will be taxable. And therefore, our basic understanding is point number A, B, C, D are taxable items. And by default, any services provided by government should be exempt. This is what we have understood. In point number A, I told you it talks about services by Department of Post by way of speed post, express parcel post, life insurance, agency services provided to a person. If you provide to normal person, it is taxable. If you provide to a person other than central government, other person, okay, other than central government, state government, and union territory. This is what is written there. That means if you provide to government, if you provide to central government, state government, or union territory, then it should be exempt. If you provide to a person, it is taxable. If you provide to government, then it is exempt. This is what you should keep in mind. The next point is services in relation to an aircraft or vessel. Now, in relation to is wider scope. Which services they have not mentioned here. It can cover any services. It can be a parking service, it can be housekeeping, it can be food supply, it can be repairs, it can be maintenance. Any services which are directly or indirectly related to aircraft would be exempt here. Next point, I haven't spoken much about this. Transportation of goods, transportation of passengers are also covered in taxability because there is a dedicated exemption for transportation of goods and transportation of exemption that we will discuss in future paras. Okay. The most important item here is entry number D, and this has created a disaster in taxability. Any service, they are not mentioning which service exactly. It can be any services other than 6A, 6B, 6C, which is already covered and which is already made taxable in first 3 points. Now, in fourth point, they are taxing any services which is not covered by ABC would be taxable, but it is taxable only if it is provided to a business entity, and that it is taxable on a reverse charge basis. That it is taxable on reverse charge basis. So, what point you have to keep in mind here? Any services, please understand, any services provided to business entity, any services provided to a business entity shall be taxable, and it is taxable on reverse charge basis. It is taxable on reverse charge mechanism. And any services provided to individual means non-business entity. Only individuals can be considered as a non-business entity because HUF, AOP, BY, firm, LLP, company, local authority, any person would be considered as a business entity. So personal related services are exempt here. This is what I have told you. I gave you one example also. If somebody is booking a marriage hall from in a government building, then it is service provided to individual, it shall remain exempt. But if an educational institution is conducting some kind of program there, then it is a service provided by government to business entity, which will be taxable, and the tax will be paid by business entity. Here I would like to take a pause, and I would like to take you to the chapter number 3 that we have already discussed about reverse charge. Because again and again I am referring the reverse charge. Let me show you the chart where we have written it exactly. So in chapter number 3, we have discussed this reverse charge mechanism. Okay. Section 9.3 talks about reverse charge mechanism. It is applicable to notified services and it is applicable according to notification number 13/2017 CTR dated 20th June 2017. Okay.
who is the supplier and who will be the recipient, and obviously in reverse charge mechanism, a recipient who is located in a taxable territory, a recipient who is located in a taxable territory would have to pay GST. So here let's look at who all are covered here: GTA, advocate, arbitral tribunal, any person for sponsorship service. And entry number 5 that you need to keep in mind: services provided by central government, state government, union territory, local authority. Obviously, we are talking about forward charge or reverse charge because these are the taxable services. These are the taxable services. In all other cases, it is not taxable services. These are the taxable services because it is excluded, because these are excluded under entry 6A. Sorry, 6B. Entry 6B. That any services that we are talking about, it is covered here. And if it is provided to business entity, a business entity has to pay tax, government services, but excluding means renting of immobile property and services covered by entry 6A, 6B, 6C. Please understand, on first three entries, 6A, 6B, and 6C, we are having forward charge. Only on 6D, we are having reverse charge. So what about immobile property? Earlier, renting of immobile property was not under reverse charge mechanism, but now it is under reverse charge mechanism through entry number 5A. Entry number 5A talks about renting of immobile property by the central government, state government, or local authority or union territory to any registered person. Then that registered person has to pay tax. Now, please understand what is the difference between entry 5 and 5A. Entry 5 talks about it is just a business entity, may be registered or may not be registered, still reverse charge will be applicable. And entry number 5A talks about renting of immobile property, the reverse charge will be activated only if the opposite person, a business entity, is a registered person. That's the only difference. Otherwise, technically, it is almost same. So, renting of immobile property or any services provided by central government, state government, or union territory or local authority to a business entity shall be taxable on reverse charge basis. अपनी एकदम बात क्लियर है, ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे ही टैक्स होना है. हाँ, लेकिन एंट्री नंबर 6A, 6B, 6C, 6A, 6B, 6C में क्या क्या है देखो परिचय से एक बार. 6A में था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस, 6A में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस है, 6B में एयरक्राफ्ट एंड वेसल के रिलेटेड का सर्विस है, 6C में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर का सर्विस है. ऑब्वियसली क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु गो देयर टू टेक अप अ सर्विस, तो वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं हो सकता. तो हियर वी आर हैविंग फॉरवर्ड चार्ज. अगर टैक्सेबल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज. एयरक्राफ्ट भी दुनिया भर के एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, तो हियर आल्सो वी आर हैविंग फॉरवर्ड चार्ज. और रेलवे वगैरह से भी ट्रैवल करने वाले लोग, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु ट्रैवल बाय रेलवे, तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज है. तो रिवर्स चार्ज है कहाँ पे? रिवर्स चार्ज खाली पॉइंट नंबर डी पे है. आप लोग प्लीज यहाँ पे भी आपने ये एंट्री लिखी है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिख दो. ए के बाजू में फॉरवर्ड चार्ज लिखना, बी के बाजू में फॉरवर्ड चार्ज लिखना, सी के बाजू में फॉरवर्ड चार्ज लिखना, और डी के बाजू में रिवर्स चार्ज लिख देना प्लीज. ठीक है ना? जहां पे भी आपने ये लिखा है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आप लिख देना ये पॉइंट. फॉरवर्ड, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, द फोर्थ पॉइंट डी पॉइंट इज अंडर रिवर्स चार्ज. ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, बाकी आपके मॉड्यूल में से फिर से एक बार बता दूंगा, कहीं ना कहीं वो लिखा ही है. ठीक है, अब मैं आगे क्या पढ़ा रहा था, आगे पढ़ाता हूं. ओके, तो यहाँ पे अपना ये डिस्कशन तो पक्का हो गया that any services provided to a business entity would be taxable on reverse charge basis. लेकिन मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. Any services provided to a business entity is taxable on reverse charge basis, but please understand, in India, what is the basic exemption limit for Maharashtra's business entities? What is the exemption limit as per section 22 for Maharashtra? Section 22 for registration. What are the limits? Can you please tell me? In Maharashtra, what are the limits if you are a supplier of goods? Maharashtra, Kerala, सबके लिए लिमिट सेम ही है. Supplier of services and supplier of both. Please tell me the limits. याद है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट क्या है? बिजनेस एंटिटी को लिमिट्स क्या है? हाँ, गुड्स का कितना है? अमोल, वेरी गुड.
गुड्स का लिमिट है महाराष्ट्र में 40 लाख। सर्विस का लिमिट क्या है, जल्दी बोलो। सर्विस का महाराष्ट्र में सर्विस का लिमिट क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है उस लेवल के बाद। सर्विस का लिमिट विजय ने बताया 20 लाख। यस, वेरी गुड। और बोथ होगा तो गुड्स प्लस सर्विस होगा तो, गुड्स प्लस सर्विस दोनों होगा तो व्हाट इज द लिमिट, प्लीज रिप्लाई। गुड्स प्लस सर्विस दोनों होगा तो गो कंजर्वेटिव, व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज गो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जहां पे गुड्स भी है, जहां पे सर्विस भी है, और जहां पे आप कंफ्यूज हो तो गवर्नमेंट हायर लिमिट रखेगा कि लोअर लिमिट रखेगा, लोअर रखेगा, 20 लाख का ही रखेगा, ठीक है ना। तो 20 लाख, तो 40 लाख, 20 लाख, 20 लाख, दीज आर दी लिमिट्स। अब सुनो ना, एक कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, छोटी सी बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर अभी 8 लाख रुपीज ही है, ठीक है ना। कोई एक बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर 8 लाख ही है। बोलो इज इट मैंडेटरी टू टेक रजिस्ट्रेशन, यस और नो। किसी का टर्नओवर खाली 8 लाख ही है, गुड्स इंडस्ट्री में है बंदा और इसका टर्नओवर खाली 8 लाख रुपीज ही है, नहीं मैंडेटरी तो है नहीं, मैंडेटरी तो है। लेकिन इस बिजनेस एंटिटी ने क्या किया, गवर्नमेंट से सर्विस ले लिया, गवर्नमेंट से कोई सर्विस ले लिया इस बिजनेस एंटिटी ने। अब गवर्नमेंट से इस बिजनेस एंटिटी ने सर्विस ले लिया तो बेचारे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लग गया इसको यहाँ पे, तो रिवर्स चार्ज में इसको टैक्स भरना पड़ेगा, और टैक्स भरने के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेगा, और रजिस्ट्रेशन ले लेगा तो कल से जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। अननेसेसरीली आप इस बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर्ड करवा रहे हो, इजंट इट। गवर्नमेंट से बेचारे ने एक सर्विस क्या ले ली, आप इसको जबरदस्ती रजिस्टर्ड करवा रहे हो। दिस इज अ बिग बिजनेस एंटिटी और स्मॉल बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 8 लाख है, बिग है कि स्मॉल है, जल्दी बोलो। स्मॉल है, तो इनका कंप्लायंस बर्डन या टैक्स बर्डन कैसा होना चाहिए, हाई या लो। कंप्लायंस या टैक्स बर्डन कैसा होना चाहिए, हाई या लो, जल्दी बोलो। इनका टैक्स बर्डन लो होना चाहिए। लेकिन अभी अभी तो आपने इसका टैक्स बर्डन बढ़ा दिया ना। देखो ना, एंट्री नंबर डी क्या बोलता है, अगर आपने गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लिया और आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरना पड़ेगा। बेचारे को खुद के ऊपर टैक्स नहीं भरना था लेकिन रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है ऐसी छोटी 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 बिजनेस एंटिटी को हमें कुछ रिलैक्सेशन दे देना चाहिए? हाँ, छोटी बिजनेस एंटिटी को रिलैक्सेशन दे देना चाहिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में से। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। लगना चाहिए आपको। तो हमने उनको रिलैक्सेशन दे दिया है, हमने लिख दिया अभी लॉ अमेंड करके कि जिनका भी स्पेसिफाइड लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है उन सारी एंटिटीज को पॉइंट नंबर डी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर डी जो है उसमें उनको टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि अभी तक उनका जो टर्न हो रहा है वो 40 लाख या 20 लाख। और आपको पता होगा तो मामी नात्री करके जो स्टेट्स है, मामी नात्री, याद आ रहा है आपको? मामी नात्री, मामी नात्री, हाँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इसमें लिमिट 10 लाख का था, ठीक है ना। एटीएम यूपीएस, एटीएम यूपीएस में लिमिट था 20 लाख का। और बाकी सारे स्टेट में, आसाम में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट में ये लिमिट्स है 40 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख का। तो आपको पता है ये स्पेसिफाइड लिमिट जब तक आपका क्रॉस नहीं होता तब तक आपको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है। रिवर्स चार्ज में से भी आपको बोला है कि चलो ठीक है आपको टैक्स नहीं भरना है। ओके सर, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, मैंने गवर्नमेंट से खाली 3,000 रुपए की सर्विस ली, पूरी जिंदगी में गवर्नमेंट से खाली मैंने ओनली 3,000 की सर्विस ले ली। आपको नहीं लग रहा 3,000 इज ओनली नॉमिनल अमाउंट, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वगैरह एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है? क्या लग रहा है आपको, ये नॉमिनल अमाउंट है कि नहीं? इज इट अ नॉमिनल अमाउंट? छोटा मोटा अमाउंट है यार, इसके लिए पूरा रिवर्स चार्ज में टैक्स भरो, ये करो, रिटर्न फाइल करो। यस, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 3,000 का, 200 का, 500 का, 1000 का जो सर्विस लेता होगा, पॉइंट नंबर डी में, पॉइंट नंबर डी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला हुआ 2-4 हजार रुपए का जो सर्विस लेता होगा उसको छोड़ दो यार, अप टू 5,000 रुपीज इन अग्रीगेट, अप टू 5,000 इन अग्रीगेट। अग्रीगेट मतलब पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 5,000 तक का अगर सर्विस लिया है गवर्नमेंट से तो आपको एग्जम्पशन दे देंगे, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सुनो, अगर आपने कभी 2,000 का लिया, फिर कभी 2,000 का लिया और फिर कभी और 2,000 का लिया, तो अग्रीगेट में 5,000 क्रॉस हो चुका है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जब तक 5,000 आपने टच नहीं किया तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। 5,000 जैसे ही क्रॉस करोगे पूरे के ऊपर टैक्स लग जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 5,000 का एक लिमिट उन्होंने दिया हुआ है। इसके आगे के 2 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाए ये आपको समझ में आ जाने चाहिए अभी, ठीक है ना। ये देखो पॉइंट नंबर 7 में मैं क्या बता रहा हूँ,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय की बात हो रही है, एग्जम्पशन की बात हो रही है अभी, ठीक है ना, फिर से एग्जम्पशन की बात हो रही है क्योंकि हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में है, अभी हम एंट्री नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 20 लाख और 10 लाख। अब ये 20 लाख 10 लाख डिलीट हो चुका है, ठीक है ना, वो अभी बन गया है कि वो नोटिफाइड लिमिट बन गया, वो दिखा देता हूं मैं आइटम। तो ये एग्जम्प्ट कर दिया हमने, ये स्मॉल बिजनेस एंटिटी को एग्जम्प्ट कर दिया, स्मॉल बिजनेस एंटिटीज को यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया, जिनका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है उनको हमने सर्विसेज में से एग्जम्प्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिस एग्जम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू पॉइंट नंबर ए बी सी एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको मैंने अभी भी बता दिया, वो तो उसी को रिवर्स चार्ज लगता है जो रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको टर्नओवर का लेना देना ही नहीं है, आप रजिस्टर्ड हो तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। हाँ, ए बी सी आज भी फॉरवर्ड चार्ज में है, फॉरवर्ड चार्ज में तो आपको टैक्स भरना नहीं होता, फॉरवर्ड चार्ज में तो गवर्नमेंट जाके टैक्स भरता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है सर, ये पॉइंट लिखा गया है 6D के लिए, कि 6D में से आपको छुटकारा दिया जा रहा है। जो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी को जो रिवर्स चार्ज पे जाके आपको टैक्स लगने वाला था, जबकि आप तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एंट्री नंबर 7 आपको मुक्ति दे रहा है। ये बात क्लियर है कि मुझे बोलो, स्मॉल बिजनेस एंटिटी को हमने छुटकारा दे दिया है। लेकिन मुझे अभी वो बस 10 लाख और 20 लाख का जो पहले लिमिट था उसका एक अमेंडमेंट आपको बताना है। ये देखो, अमेंडमेंट इन एंट्री नंबर पॉइंट नंबर 7, क्योंकि अभी लिमिट कंट्री में अलग अलग है, कहीं 40 लाख का लिमिट है, कभी 10 लाख का लिमिट है। तो ये जो पहले वर्डिंग्स लिखे गए थे 10 लाख एंड 20 लाख का, ये डिलीट करके अभी ऐसा आया हुआ है, सच अमाउंट, अभी नया लैंग्वेज ऐसा है, सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act section 22। ठीक है ना, ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 22 की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेक्शन 22 की, ठीक है। अरे अमेंडमेंट समझा कि ये क्या है, ये पहले 20 लाख 10 लाख लिखा था, अभी कहीं कहीं पे 40 लाख का लिमिट है, कहीं 10 लाख का लिमिट है, कहीं 20 लाख का लिमिट है, तो कितने अमाउंट लिखेगा ना। तो उसने बोल दिया भाई तुमको जो रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिलती है तब तक आपको रिवर्स चार्ज में से भी मुक्ति मिलेगी, आपको टैक्स नहीं लगेगा गवर्नमेंट सर्विस पे। ये पॉइंट नंबर 7 क्लियर है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी को एग्जम्पशन दे दिया हमने, स्मॉल बिजनेस एंटिटी को हमने एग्जम्पशन दे दिया एंट्री नंबर 6D से। एंट्री नंबर 6D जो टैक्सेबिलिटी आता है उसमें से हमने उनको बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये हो गई एक बात। आगे चलता हूं, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस दिया, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, भाई भाई का नाता, आगे बोलो टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए, टी और ई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टी और ई, हेलो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टी और ई, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एक बिजनेस एंटिटी है, टी और ई, तो ई आपने बता दिया। अच्छा, ये वाला जो टी और ई है वो भी एंट्री नंबर 6D की बात करता है, ठीक है ना, एंट्री नंबर 6D की ही बात कर रहा है। एबीसी टैक्सेबल है, ए बी सी सबके लिए टैक्सेबल है, एबीसी में जो टैक्सेबल लिखा है वो लिखा है, वो बात खत्म हो गया, ठीक है ना, उसको यहाँ पे एग्जाम नहीं किया जा रहा है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अगर डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोगों को, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोगों को अगर टिकट प्रोवाइड किया ट्रैवल करने के लिए, तो कल अगर पीयूष गोयल जी जो रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है ना, उन्होंने ट्रैवल किया अगर रेलवे में से और उन्होंने टिकट निकाल के ट्रैवल किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट पर्सनल है, तो उनके ऊपर एसी फर्स्ट क्लास के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आंसर इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी से मुक्ति नहीं है आपको, यहाँ पे 6D से मुक्ति दिया जा रहा है। ए बी सी जैसे नॉर्मल लोगों के लिए टैक्सेबल है, वैसे गवर्नमेंट को भी टैक्सेबल है। तो सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट वुड बी टैक्सेबल, बट अंडर 6A 6B 6C, नॉट अंडर 6D। हमको छुट्टी जो चाहिए, जो मुक्ति चाहिए थी, वो 6D से चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को एग्जाम्प्ट करके रख लिया है,
6D से। इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। जरा 2 मिनट मुझे दो, मुझे लीगल कंटेंट एक लेवल तक लेकर आने दो, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज does not exceed rupees 5000, does not exceed rupees 5000। does not exceed की लैंग्वेज यूज की गई है, मतलब ये कंडीशन है। does not exceed की लैंग्वेज यूज की गई है, मतलब ये कंडीशन है। मतलब अगर एक्सीड हो जाता है तो एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे एग्जांपल में जहां पे आपने 2000, 2000 और 2000 ऐसे 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट से सर्विसेज लिया, तो टोटल फाइनेंशियल ईयर में सर्विस हो गई आपकी 6000 की। तो टैक्सेबल कितना होगा? कंप्लीट 6000 और 6000 माइनस 5000 1000। जल्दी बोलो, टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 6000 या 1000? आपके पास 2 ऑप्शन है, टैक्स तो लगना है। पूरा 6000 टैक्स होगा या ओनली 1000 टैक्स होगा, ये बात हो रही है। चूज करो ना, दोनों में का एक नंबर चूज कर दो, मुझको समझ में तो आएगा आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फुल 6000 टैक्स होगा। द राइट आंसर इज फुल 6000 टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिट नहीं है। जो लिमिट की लैंग्वेज होती है वो होती है अप टू की। जो लिमिट की लैंग्वेज होती है ना वो बोलता है अप टू, इधर तक एग्जाम। ये क्या बोलता है? तब तक एग्जाम जब तक 5000 क्रॉस नहीं होता। तो सर 5000 क्रॉस हो गया तो इफ 5000 इज एक्सीडेड तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? नहीं समझ रहा है तो मैं बात करता हूं यहाँ पे। Further, in case where continuous supply of services provided by the central government, state government, union territory or local authority, the exemption shall apply only where the consideration charge for services does not exceed 5000 in a financial year। पूरे 5 पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं अगर 5000 क्रॉस हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलता हूं। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी, तो यहाँ पे अभी सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट एंटिटी दे रहा है। सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट एंटिटी दे रहा है। किसे दे रहा है? टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंटिटी गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है। ठीक है ना? गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सर्विसेज टू सेंट, हाँ मतलब गवर्नमेंट एंटिटी का ही है, लेकिन जा रहा है सर्विसेज रेसिपिएंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी or any other person specified by central government, state government, union territory or local authority against consideration received from central government, state government, union territory, तो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। आप कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो, आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हुए कुछ काम करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। बहुत ही कॉमन सी बात है। ठीक है ना? इतना बड़ा एग्जम्पशन नहीं है। अब ये बुड्ढा बुड्ढी देखो, ठीक है ना? लुक एट दिस पीपल, ठीक है ना? एक लेवल के बाद दिस ओल्ड एज पीपल बिकम्स अ बर्डन इन द फैमिली। ठीक है ना? उनका वो हेल्थ केयर का मेंटेनेंस वगैरह अपने को नहीं जमे। तो एक लेवल के बाद आजकल क्या ट्रेंड आ चुका है कि हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि वी डोंट लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन एक लेवल के बाद अपने को, क्योंकि हम उनको मेंटेन नहीं कर पाते, एवरीबॉडी इज वर्किंग इन नाउअडेज, देयर कैन बी वेरियस सिचुएशन, आई डोंट वांट टू गो इनटू मोरालिटी ऑफ द इशू, लेकिन ऐसा होता है कि ओल्ड एज पेरेंट्स को हम अपने घर में नहीं रख पाते, तो वी हैव टू कीप देम इन सम सेफ हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम्स बोलते हैं, जहाँ पे हम उनको या हिंदी में या मराठी में उसको वृद्धाश्रम बोलते हैं, जहाँ पे हम उनको रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट इनकरेज क्या कर रहा है कि जब रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखो पेरेंट्स को जहाँ पे वो कंफर्टेबल रह पाए। अब कंफर्टेबल रह पाए मतलब उनके लिए डेडिकेटेड रूम हो, डेडिकेटेड वॉशरूम हो, ठीक है ना? उनका नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे हो जो उनके ऊपर ध्यान रखे। तो आप देख रहे हो तो ऐसे नहीं कि छोड़ के आ रहे हो उनको, you are just keeping them in a safe home, old age home, where the utmost care can be taken by the professional staff, और उनकी पूरी कम्युनिटी वहां पे जो होगी, बाकी लोग भी जो होंगे वो ओल्ड एज होंगे, तो अपनी एक लाइफस्टाइल वो लोग वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट शुड बी देयर चॉइस, इट शुड नॉट बी मैंडेटेड बाय यू। ठीक है ना? मैं खाली आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेफ ऐसे ओल्ड एज होम्स को बनाना चालू किया। अब उन्होंने एग्जम्पशन दे दिया। एग्जम्पशन किसको दिया? जो लोग वहां पे जाके रहने वाले हैं। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय, ये प्राइवेट वाले का नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, या एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने किया है। ये सर्विसेज किसको दिया जा रहा है? टू रेसिडेंट, मतलब फॉरेन के बुड्ढे नहीं है, डोमेस्टिक बुड्ढे लोग हैं यहाँ पे, जिनका एज 60 से ज्यादा है
आप ऐसे नहीं कि अभी चले जाओ, आप 45 की एज में ही चले जाओ वहां पे, ऐसे नहीं, 60 प्लस है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू, ये लैंग्वेज देखो, ये लिमिट हो गया, ये लिमिट है, ये कंडीशन नहीं है। जहां पे अप टू की लैंग्वेज यूज होती है वो कंडीशन हो जाती, लिमिट हो जाता है अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। तो मदर फादर या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को दोनों को रखा जा रहा है तो 50,000 हो जाएगा, एक पर्सन का 25,000 का लिमिट है। बिलिंग में 25,000 के कंसिडरेशन में दे कैन हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ, तो 25,000 तक का एग्जम्पशन दिया है, प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, अलग अलग आप बिलिंग नहीं कर रहे हो उनको। ऐसी एक बात हमारी यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 34A क्या बोलता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग। देयर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन्स टेकन बाय सच अंडरटेकिंग फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं, वो कभी कभी उनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए गारंटर चाहिए रहता है। अब बिना गारंटर के बैंक लोन नहीं देगा, तो गारंटर यहाँ पे कौन हो जाता है, गवर्नमेंट, और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता होगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं भरना है, आपको खाली गारंटी का पैसा लेना है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करना है। तो ये हो गया 34A वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 47, आपको क्या लग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस फ्री है गवर्नमेंट से कि पहले पैसे लेता है? ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है तुम्हारे बैच में, है कोई जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस फ्री में मिलता है कि पेमेंट करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद अगर जो फीस है प्लस जीएसटी लगेगा, तो आपको नहीं लग रहा थोड़ा ज्यादा हो गया? मतलब गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस का फीस भी ले रहा है और उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज कर रहा है, तो आपके मेरे जैसे कॉमन लोगों को हर्ट होगा। नॉट ओनली दैट, जो लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं आरओसी पे, रजिस्टर ऑफ कंपनी पे, तो उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने पड़ते हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उसमें अलग से आप जीएसटी लोगे तो कंपनी बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपको कहीं पे होटल चालू करना है तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, फायर सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस लेने की फीस होती है, वो फीस के ऊपर चार्जेस लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। आपको इनकम टैक्स अगर भरना है तो पैन लेना पड़ता है, पैन अगर लेने जाओगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर एप्लीकेशन करोगे तो फीस भरना पड़ता है, फीस के साथ जीएसटी लगेगी, जीएसटी लगेगी तो आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस कंट्री में बढ़ जाएंगे। ऐसे दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं एक बिजनेस एंटिटी को बाय मेकिंग सम पेमेंट, वो पेमेंट वो चलेगा, पेमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। एंट्री नंबर 47 भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है आम लोगों के लिए, मेरे और आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में यूज आती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ये पार्टनरशिप फर्म का होने दो, एलएलपी का होने दो, कंपनीज एक्ट का होने दो, प्रोविडेंट फंड एक्ट का होने दो, एनी एक्ट का होने दो, मोटर एक्ट का होने दो, ठीक है ना। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपने भर दिया तो रजिस्ट्रेशन मतलब 47 याद रखना, ठीक है ना, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, होटल सेटअप कर रहे हो, फूड इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपको पता है वो सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया, व्हिच इज अगेन अ वेरी मच बेनिफिशियल एग्जम्पशन फॉर ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी। नेक्स्ट, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है, सर्टिफिकेट निकाला है, मैं हम यहाँ पे आने के बाद हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ, आपको भी बता दूं, जिंदगी के 2 सर्टिफिकेट होते हैं जो गवर्नमेंट देता है, बाकी सारे जो उसके बीच में मिलते हैं वो सारे कमाने पड़ते हैं, आप लोगों को मेहनत करके लेनी पड़ती है। एंड आई विश एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ यू कि अब ये कोविड-19 के सिचुएशन में भी आप पढ़ रहे हो, और अगर आप इस सिचुएशन में अगर प्रोफेशनल बन जाओगे तो यू विल बी अ प्राउड पर्सन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि इस मोमेंटम में अगर आप बन सकते हो घर पे बैठ के पढ़ाई करके, जहाँ पे बैच में नहीं आ रहे हो, तो इट इज अ चॉइस कि आपको करना है कि नहीं करना। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप कुछ बन गए, सीए बन गए, सीए में बन गए, ग्रेजुएट बन गए, तो यू हैव अचीव्ड अ लॉट। और ये चैलेंजेस आपने सारे फेस किए हुए, बिकॉज वी नो दैट दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। फिनेंशियल प्रेशर होता है, घर में झगड़े होते रहते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं है, लाइब्रेरीज बंद है, जिम बंद है, कॉलेजेस बंद है, हमें कभी क्या हो जाएगा पता नहीं है, वी ऑल आर रनिंग अ रिस्क ऑफ डेथ एवरी डे। और फिर उसमें आपने पढ़ाई करके प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीव किया हुआ है। सो आई विश एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ यू दैट यू शुड अचीव योर
जर्नीज सक्सेस, ऑल द सक्सेसेस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप देखो, और दो बातें जो गवर्नमेंट अपने को देता है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है, वो दो सर्टिफिकेट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। और ये भी गवर्नमेंट फ्री में नहीं देता, उसके भी कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है ना। तो ये दो सर्टिफिकेट कमाने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट के साथ साथ जीएसटी ना लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने वो जीएसटी एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस, वीजा, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब का फीस का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट क्या करता है आपको पता होगा, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट देता है? बीओटी के कॉन्ट्रैक्ट देता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देता है गवर्नमेंट, कि किसी को ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को रेलवे स्टेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गवर्नमेंट दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट देते रहता है। अब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट का बिडिंग ओपन होता है, और बिडिंग जब किया मैंने, उन्होंने जब टेंडर ओपन किया तो मैंने बिड किया टेंडर में, और मैंने ना टेंडर में डाल दिया कि मैं 1000 करोड़ में आपको ब्रिज बना के दे दूंगा, 1000 करोड़ में मैं ब्रिज बना के दे दूंगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आगे जाके क्या हो गया, मटेरियल के वगैरह प्राइसेस कुछ ज्यादा ही चेंज हो गए, या मेरा कैलकुलेशन एरर था, और मुझे ऐसा पता है कि 1000 करोड़ में अभी ब्रिज नहीं बनेगा, मेरा कम से कम कॉस्ट ही लग जाएगा 1200 करोड़। और मैंने अगर कॉस्ट इंक्लूड करके अगर ब्रिज कंप्लीट किया तो मुझे 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा। 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैंने उनके हाथ पांव जोड़े, मैंने बोला साहब वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप प्लीज बढ़ा दो, 1000 से कम 1200 करोड़ 1300 करोड़ कुछ कर दो सर, क्योंकि वो खर्चा ही बढ़ गया है, मुझे लॉस हो जाएगा, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने बोला देखो हम कॉन्ट्रैक्ट तो रिवाइज नहीं कर सकते, आप चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के आपको 5% भरने पड़ेंगे। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, उसका 5% आप समझते हो कितना होता है? उसका 5% हो जाएगा 50 करोड़। अब मुझे बताओ 50 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, एक काम करता हूं मैं 1% ले लेता हूँ, 5% थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझको, तो 1% मैंने ले लिया। 1% मैंने कैंसलेशन पकड़ लिया। अब 1% जब मैं कैंसलेशन पकड़ लेता हूँ, तो आप समझ रहे हो 1% मतलब मुझे 10 करोड़ भरने पड़ेंगे। अब 10 करोड़ मुझे जब भरने पड़ेंगे 1000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी अमाउंट है, एक अमाउंट समझो आप 10 करोड़ का मुझे एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10 करोड़ का पेमेंट कैसे कैसे करके मैंने मैनेज करके भरा होगा, इजंट इट? आप जरा प्रेशर सोचो ना, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या प्रेशर आया रहेगा। बेचारे को 10 करोड़ भरना है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा तो 200 करोड़ का लॉस होगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल है, जब भी लॉस होने वाला है, दोनों सिचुएशन में लॉस तो होने ही वाला है, तो गो फॉर विचर इज लोअर वाला लॉस। तो विचर इज लोअर के हिसाब से 10 करोड़ लेके मैटर क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 10 करोड़ उस बेचारा भर रहा है। कितना बुरा लगेगा उसको अगर गवर्नमेंट बोलेगा सुनो सुनो 10 करोड़ के ऊपर 18% जीएसटी भरना है, क्योंकि आपका नॉन परफॉर्मेंस हम टोलरेट कर रहे हैं, वी आर टोलरेटिंग योर नॉन परफॉर्मेंस। तो ये बेचारा शायद सुसाइड ना कर ले, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी फाइन या हम लगाते हैं, फाइन या पेनाल्टीज लगाते हैं या लिक्विडेटेड डैमेज लगाते हैं फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसके ऊपर हम आपको, ये देखो टोलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस की जो आप सर्विस लेते हो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का, उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। जीएसटी हमने एग्जम्प्ट करके रखा है। मैं पूरा पढ़ लेता हूं आपके लिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ tolerating non-performance of a contract for a consideration in a form of fines or liquidated damage payable to central government, state government, union territory और local authority। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप नहीं काम कर रहे हो ना, चलेगा, अब फाइन भरो, एग्जिट करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फाइन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो जीएसटी भी लग जाता तो आप बेचारे मर जाते। इतना हो गया, इतने पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। आगे के कुछ पॉइंट है, लेक्चर मेरा खत्म होने आया है, ये प्रोसेस होने के लिए 10 मिनट ले लेगा। एक काम करो आप मुझे रीज्वाइन करो 12:10 को, प्लीज रीज्वाइन मी 12:10, ठीक है ना। और जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए जरा आपके मॉड्यूल में से वो सारे एंट्री नंबर देख देख के जरा रीड करके मार्किंग कर लो। एंट्री नंबर 62 तक मेरा आ चुका है इस सीरीज का। जो जो एंट्रीज मैंने पढ़ा है जरा प्लीज उसको मार्क कर लो, फटाफट पढ़ लो आपके मॉड्यूल में से।